Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and have a great day. Okay, now today we are going to study relation between HCF and LCM. What Whenever we have given two polynomials, so what is the relation between them? So we consider first polynomial as P and the second polynomial as Q. So what will be the relation between them? The product of LCM and HCF will be equal to the product of these two polynomials as well. Now let's start with exercise 4.5 so we can understand it more visibly. Okay, now the question number one. In question number one, they are simply saying you need to find the LCM and HCF of these two polynomial. So as you know that we have done the previous method for finding LCM and HCF is to factorize those things, factorize the polynomial. Okay, now the solution is, अब आप सबसे पहले देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है. यू कैन ईजिली फाइंड दैट 4 इज़ कॉमन इन बिटवीन दैम. इट विल बी 4 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर हो गई बात. नाउ यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस 4 रिमेन एज इट इज़ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So it will be 4 as it is, 2 minus x, 2 plus x. Okay, now this is clear. Afterward we have the second one. We can see it that we need to apply the middle term breaking. So for that, the first term is x square and the last term is minus 6x, so it will be minus 6x square. Now what will be the factors of it? 2 multiplied by 3, 2 3s are 6, and if we subtract 3 from 2 we will get 1. So since we want the positive number, positive sign in the middle term, positive 1 in the middle term, so we have to use positive sign with the greater number. So it will be x square plus 3x minus 2x minus 6. Okay, plus minus minus, 3 minus 2 gives you 1, and again plus minus minus, 3 2s are 6. Clear हो गई बात. Now we are going to take out the common from it. X plus 3 minus 2 x plus 3, minus plus minus x plus 3 as it is. Now it will be x plus 3 into x minus 2. So now we need to find the HCF. What is mean by the HCF? Highest common factor. Highest common factor means the factor which is common in both. Now see, is there anything which is common in both? अब आप एक चीज़ चेक करो. यहाँ पे मेरे पास आ रहा है x माइनस 2, और ये मेरे पास जो गिवन है वो मेरे पास गिवन है 2 माइनस एक्स. अगर मैं इसकी साइन कॉमन निकाल लेती हूँ तो ही मेरे पास यहाँ से HCF बन सकता है. बट विदाउट दैट हम HCF नहीं लिख सकते. HCF 0 आ जाएगा बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं हैं. So what we are going to do is we are going to take out the common from this term, so that it will be equal with the second term we have. So हम यहाँ से जब आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे तो ये नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और 2 प्लस एक्स से आपने कोई भी चीज़ कॉमन नहीं फाइंड की है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज किया, ये 4 हो गया. अब कोई कहे मैं इस माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर लेकर आना चाह रहा हूँ या लेकर आनी चाह रही हूँ, तो कोई इशू नहीं है. आप सिंपली क्या करोगे, आप लिखोगे माइनस 4 x माइनस 2 और 2 प्लस एक्स, और x प्लस 2 दोनों एज इट इज़ होगा. ठीक है, ये आपके पास टर्म बन जाएगी. नाउ वी हैव HCF. अब आप HCF लिखो. HCF आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस 2 के. LCM विल बी इक्वल्स टू वॉट? माइनस 4. सबसे पहले हमारे पास माइनस 4 आ गया. यहाँ से मेरे पास आ रहा है 2 प्लस एक्स. ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ रहा है x माइनस 2, और फिर आ गया मेरे पास x प्लस 3. अब आप ये देखो, इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है a प्लस बी, a माइनस बी. इसका ऑर्डर अगर दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, मैं इसको 2 प्लस एक्स लिखूँ या x प्लस 2 लिखूँ, उसमें मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं आता. नेगेटिव साइन में डिफरेंस आ रहा था, इसलिए मुझे कॉमन निकालना पड़ा ताकि वो सेम हो जाए. सो सिंपली इस वाले जो पोर्शन है इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4 विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव 1, x plus 3, and this will be your answer. Now let's move to the another part, that is part 2.
नाउ व्हाट वी हैव इन द पार्ट टू में मेरे पास आप देख सकते हो है a की पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1. देन द सेकेंड पार्ट इज़ a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1. क्लियर हो गई बात. सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट लिया, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिया. फर्स्ट पॉलिनोमियल में से फर्स्ट टू पार्ट में से हमने कॉमन क्या निकाला, ए क्यूब निकाला, तो मेरे पास रिमेनिंग बच गया a-1. और जो सेकंड वाले मेरे पास पार्ट है उसमें से मैंने -1 कॉमन निकाला तो मेरे पास बच गया a-1. ठीक है, ये दोनों सेम थे, सेम ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखा, जो चीज़ कॉमन निकाली थी उसको एक ब्रैकेट में क्लोज किया. अब आप देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिव्स यू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर. ठीक है, इसको आपने ओपन किया तो आपके पास a-1 एज इट इज़ आ गया. सबसे पहले a माइनस बी के लिए आ गया a-1. सेकेंडली आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी. 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो एज इट इज़ रहेगी, तो इसलिए प्लस ए और प्लस 1. 1 स्क्वायर इज़ 1. आगे बढ़ते हैं. अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इस जो गिवन था पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल, उसको आप फार्मूले में क्लोज करने की कोशिश करोगे. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्लोज होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि पावर 4 जो हो गई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर और ये 1 बी की जगह प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें सिर्फ एक ए स्क्वायर चाहिए. हमने यहाँ पे जब 2 ऐड कराया तो यहाँ पे हम -1 ए स्क्वायर करवाएंगे. क्यों? क्योंकि जब हमारे पास हम इसको दोबारा अपने क्वेश्चन बनाएं तो हमारे पास ये इजीली बन सके. अब देखें, ये जो चीज़ है ना वो आपके पास क्लोज हो गई ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पे, और माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, जो कि खुलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी. हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, अब HCF क्या होगा, जो चीज़ दोनों में कॉमन आएगी उसको हम HCF बोलेंगे. अब आपके पास देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ये रहा, इसका ऑर्डर चेंज है. ठीक है, तो कोई इशू नहीं है. सब एज़ यू नो कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है तो ऑर्डर चेंज होने से कोई इशू नहीं होता है, बट नेगेटिव साइन होने में फिर हमारे पास चेंजेस आ जाती हैं. ठीक है, तो HCF मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1. अब LCM के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले HCF था वो मैंने कॉपी कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1. अब देखें क्या क्या चीज़ें रिमेनिंग है. a-1 ये 2 दफ़ा आ रहा है. अगर ये यहाँ कॉमन होता तो मैं एक दफ़ा लिखती, बट ये दोनों दफ़ा एक ही टर्म में आ रहा है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में आ रहा है, तो इसलिए दोनों दफ़ा ये लिखा. ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, जो मेरे पास रिमेनिंग था इसका वो मैंने लिख दिया. अब आप एक चीज़ चेक करो, मैं इसको दोबारा अरेंज करके जो चीज़ फार्मूले में क्लोज़ हो सकती है उसको क्लोज़ करूँगी. मैंने लिखा सबसे पहले a-1, उसके बाद दूसरा लिखा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, यानी कि ये जो चीज़ थी ना इसको अरेंज करा ताकि ये फार्मूले में क्लोज़ हो जाए और बाकी की चीज़ों को रिमेनिंग ऐसे लिख दिया. इन दोनों जो टर्म है ये मेरे पास क्लोज़ हो गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पे, और बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ आ गई. एंड दिस इज़ योर आंसर. नाउ वी हैव द थर्ड पार्ट में आपके पास अगेन दो पॉलिनोमियल हैं, और दोनों पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्योंकि तीनों में मेरे पास तीनों टर्म्स में एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x में मेरे पास x कॉमन था. मैंने x को कॉमन सबसे पहले लिखा है. उसके बाद मैंने क्या किया, जो रिमेनिंग टर्म थी उसको एज इट इज़ कॉपी किया और उसके ऊपर मिडिल टर्म अप्लाई करी. मिडिल टर्म के लिए क्या होता है, मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फैक्टर्स बनाते हैं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा था, -3x स्क्वायर. मुझे रिक्वायर्ड है 2x. ठीक है, तो 2x लाने के लिए मैंने फैक्टर क्या लिए है, 3 1 ज़ा 3, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2. ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा. ठीक है, सिंपल मैंने इसमें क्या किया है, कॉमन निकाला है. कॉमन निकालने के बाद जो जो चीज़ें थी फैक्टर्स थे वो मैंने लिख दिए. सिमिलर वे में मैंने इसका सेकंड पॉलिनोमियल भी सॉल्व किया. सेकंड पॉलिनोमियल जब मैंने सॉल्व किया, अगेन उसमें एक्स कॉमन आया. एक्स कॉमन आने के बाद फैक्टर्स बनाए. फैक्टर्स बनाने के बाद जो चीज़ कॉमन थी वो एज इट इज़ लिख दी. अब चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है. HCF के लिए दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखते हैं. एक्स भी आ रहा है दोनों में और x + 3 भी आ रहा है. ठीक है, ये लिख दिया. अब LCM में सबसे पहले HCF वाला जो था वो लिख दी टर्म, उसके बाद रिमेनिंग टर्म लिखी. अब यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या बची है, x-1, और यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग टर्म क्या बची है, 2x - 1. तो बेसिकली दिस विल बी आवर आंसर. क्लियर हो गई बात. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन नंबर 2. Okay, now let's see question number 2. Question number 2 में they have given us if HCF and LCM of two polynomials are
एक्स माइनस 7 एंड एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 रिस्पेक्टिवली का मीन्स जो चीज़ पहले लिखी हुई होगी वो पहले की वैल्यू होगी, मीन्स HCF की वैल्यू दिस वन एंड LCM विल बी दिस वन, ठीक है. रिस्पेक्टिवली मीन्स दिस थिंग. Then find the product of two polynomials. As you know that we have already studied this, that LCM multiplied by HCF will be P multiplied by Q. Means हमने दो polynomials consider किए थे कि first polynomial is the P and the second polynomial is the Q. This is the thing we have done in the starting of the lecture, जिसमें हमने पढ़ा था relation between HCF and LCM. Okay, same thing. This is the given, ठीक है. This is the given that HCF of two polynomials are x minus 7 and LCM of two polynomials are x cube minus 10x square plus 11x plus 70. You need to find the product of two polynomials. As we know that HCF multiplied by LCM will be P multiplied by Q, or you can say product of two polynomials. P multiplied by Q or product of two polynomials will be same. ठीक है, I can write it as well, product of two polynomial. Afterwards, now what you are going to do, in the place of HCF I have written x minus 7 multiplies, and in the place of LCM I have written the whole LCM term which is given in the question. सिंपली मल्टीप्लाई किया, इनके फर्स्ट टर्म लिए उसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, -7 लिया है उसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद अरेंज की क्या टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइक टर्म्स, सॉल्व की, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. क्लियर हो गई बात. नाउ मूव हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x4 प्लस 3x क्यूब minus 12x square minus 20x plus 48, and their HCF is x minus 2. Find their LCM. Same methodology will be followed, same relation will be followed, that this is the given two polynomial product is this thing, HCF will be this thing, and LCM we need to find it out. Clear हो गई बात. Now afterward we have to written this thing with each question, as we know that LCM multiplied by HCF is P multiplied by 2, that is two polynomial product. Afterwards, now we have, what I have done is I have written the values with respect to the question. HCF में मेरे पास x minus 2 गिवन था, वो मैंने लिख दिया, और प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी गिवन था तो वो मैंने लिख दिया. अब आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. डिवाइड का मतलब ये है ये दैट यू नीड टू डू द डिवीजन. अब डिवीजन के लिए सिंपल क्या किया आपने, जो ऊपर वाली टर्म थी यानी कि न्यूमरेटर था, आपने उसको इनसाइड द डिवीजन साइन लिखा, और जो डिनोमिनेटर था उसको आउटसाइड लिखा. x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 है फर्स्ट, और मेरे पास जो टर्म गिवन है वो गिवन है x माइनस 2. तो मैंने सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई कराया, x क्यूब से. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब. ठीक है, ये चीज़ मैंने ली और देखिए ये पुट कर दी. ये पुट करने के बाद साइन चेंज करा, ये नेगेटिव साइन हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पूरी चीज़ कैंसिल आउट हो गई. प्लस 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 3 + 2 गिव्स यू व्हाट, 5x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 एज इट इज़ कॉपी हो गया. चलें जी, अब मेरे पास क्या आ रहा है, 5x क्यूब मेरे पास फर्स्ट टर्म है, और मेरे पास जो गिवन डिवाइज़र है वो है x माइनस 2. तो इसको मुझे क्या बनाना है, 5x क्यूब. इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 5x स्क्वायर से, 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 5x क्यूब माइनस 5 × 2 = 10x स्क्वायर. चेक कर लेते हैं जी, यही आ गया. अब आपने क्या करा, साइन चेंज कराया, ये माइनस साइन हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया. अगेन फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो गई, माइनस प्लस माइनस क्या बन गया, बच गया मेरे पास माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 एज इट इज़ कॉपी हो गया जो रिमेनिंग था. अगेन अब आप चेक करो मुझे क्या रिक्वायर्ड है, माइनस 2x स्क्वायर. ठीक है, डिवाइज़र में मेरे पास क्या है, x माइनस 2 है. x माइनस 2 को मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, माइनस 2x स्क्वायर. तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 2x से. तो ये बन गया मेरे पास माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4x. चलें जी चेक कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास कैरी टर्म. अब साइन चेंज कराया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो ये हो गया 24x, और ये प्लस 48 एज इट इज़ कॉपी हो गया.
अब अगेन मेरे पास डिवाइज़र है x माइनस 2, मुझे जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास 24 माइनस 24 है x है, तो मैंने इसको माइनस 24 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये हो गया माइनस 24x प्लस 24 टू ज़ा 48। साइन चेंज कराया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो पूरी टर्म थी जिससे मैं मल्टीप्लाई करा रही थी वो मैं ऊपर लिखती जा रही थी, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आ रहा था वो तो हम नीचे लिख रहे थे, सही है, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली दिस विल बी द LCM, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ द LCM। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। Now we have the next question, question number 4, in which they are saying that the product of two polynomial is this and their LCM is this, find their HCF। अब आप देखो इसमें हमारे पास क्या गिवन था, 3 में हमारे पास 3 में गिवन था HCF गिवन था, LCM फाइंड करना था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी गिवन है, ठीक है, LCM भी गिवन है और HCF फाइंड करना है। चलें जी करते हैं, बिल्कुल सेम मैथडोलॉजी हमारे पास फॉलो होगी। सेम मैथडोलॉजी फॉलो मीन्स गिवन हमारे पास है टू पॉलिनोमियल प्रोडक्ट इज़ दिस थिंग, LCM is this thing, we need to find the HCF. As we know that LCM multiplied by HCF gives you product of two polynomials, so HCF will be equals to product of two polynomials divided by LCM। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले फार्मूला अरेंज कर लिया, फिर मैंने वैल्यूज़ पुट करी। आपकी अपनी चॉइस होती है कि पहले वैल्यूज़ पुट कर लो या फार्मूला अरेंज करके वैल्यूज़ पुट कर लो, दिस इज़ योर ओन चॉइस। चलें जी, अगेन इसको किस में पुट करा हमने, अपने डिवीजन में, यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास इनसाइड द डिवीजन साइन आ गया और डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली डिवाइज़र बन गया। अब आप देखिए डिवाइज़र मेरे पास है y क्यूब प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12। सबसे पहली टर्म है मेरे पास y की पावर 4, फर्स्ट टर्म है मेरे पास y क्यूब, तो मैं इसको सिंपली अगर y से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सबसे पहले y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब माइनस 11y² माइनस 12y, ठीक है, यही आ गया, ठीक है। ये पुट कर दिया, साइन चेंज कराए, कैंसिल आउट करा दिया, जहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा था वहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगी या एडिशन हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 गिव्स यू 4, माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 3 गिव्स यू 8, माइनस प्लस माइनस 56 माइनस 12 गिव्स यू 44 और माइनस 48 एज इट इज़ कॉपी हो गया। अगेन अपना डिवाइज़र लीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 2y² माइनस 11y माइनस 12। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 4y क्यूब, तो सिंपली मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 4 से। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 4y क्यूब माइनस 8y² माइनस 44y माइनस 48, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे पुट करी, साइन चेंज करा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स जो हमारे पास आंसर है y प्लस 4 वो क्या बन गया, HCF, एंड दिस इज़ द आंसर। Now we have the next question, question number 5, in which they are saying find the second polynomial when the first polynomial is this, HCF is this and LCM is this, ठीक है। Now getting to the solution, ये हमारे पास कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ दिस थिंग, सेकंड HCF इज़ दिस, LCM इज़ दिस एंड वी नीड टू फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ व्हाट, P एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज़ व्हाट, Q, ठीक है। हमने एज वी नो दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF विल गिव्स यू P मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है। आफ्टरवर्ड HCF और LCM की जगह मैंने उसकी वैल्यूज़ पुट करी और P की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई बाय Q एज इट इज़ आ गया, मीन्स सेकंड पॉलिनोमियल एज इट इज़ आ गया, बिकॉज वी नीड टू फाइंड इट आउट। अननोन वेरिएबल है ये हमारे पास, अननोन टर्म है। अब आपने क्या किया, x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज़ रखा और इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज मीन्स फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाला और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाला। ये हो गया मेरे पास एक्स क्यूब, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1। सिमिलर वे में इसको भी आपने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, ताकि अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही होगी ना तो वो अच्छे से कैंसिल हो जाएगी। अब आपने जो भी चीज़ फैक्टराइज करी थी उसमें हमने कॉमन ब्रैकेट को x प्लस 1 को एक जगह लिख दिया और जो कॉमन निकाला था एक्स क्यूब माइनस 1 उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। सिमिलर वे में इसके लिए भी यही काम किया, मल्टीप्लाई बाय Q एज इट इज़ लिख दिया। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब इसने डिवाइड किया तो जो जो चीज़ें कॉमन थी आपने क्या करा, सिंपली उसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बची x प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1, इसको अगर आप दोबारा फैक्टराइज करना चाहो, सॉरी मल्टीप्लाई करना चाहो, मल्टीप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप लिख लो। नहीं करना चाहो तो डायरेक्टली आप क्या करो, ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज़ लिख दो।
So q is what? Second polynomial answer is this. And keep this in your mind, we always write with the डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि फ़र्स्ट होती है हमारे पास सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे लेसर पावर. क्लियर हो गई बात. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 इन विच दे आर सेइंग फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, यानी कि ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये हो गया मेरे पास सेकंड पॉलिनोमियल. इफ़ देयर HCF इज़ x-1, अगर उसका HCF क्या है मेरे पास x-1. चलें जी आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दिस थिंग. ठीक है, HCF मेरे पास ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड द सेकंड पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ व्हाट p एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज़ व्हाट q. तो मैं जब भी उसकी प्लेस पे लिखूँगी इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया कि दिस इज़ p एंड दिस इज़ q. As we know that LCM multiplied by HCF gives you what? P multiplied by Q. We need to find the LCM, so it will be P multiplied by Q divided by HCF. Okay. So in the place of P multiplied by Q, I have written both values. P is this thing, Q is this thing. And in division HCF is given as what? x-1. अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहो तो इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डिवाइड करो, और अगर नहीं ये करना चाहते तो सिंपल वे में क्या करोगे, किसी भी एक, या तो आप इसके साथ या फिर इसके साथ क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे. क्यों? आपको अगर याद हो, जब भी हमारे पास a प्लस बी होता है, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई लेट सपोज 2 लिखा हुआ है, तो आप इसका एलसीएम ब्रेक करते हो तो ये हो जाता है a डिवाइडेड बाई 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 2. मीन्स इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हो, या इन दोनों को प्लस करवा के डिवाइड करवा लो. बट जब भी हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाई, यानी कि बीच में, यानी कि सेंटर साइन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन होता है, तो चाहे मैं a को डिवाइड कराऊँ 2 से, या चाहे मैं b को डिवाइड करवा लूँ 2 से, यानी कि b को डिवाइड करा लूँ 2 से, कोई डिफरेंस नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से. तो मैंने भी यहाँ पे यही काम किया है. मैंने हाईएस्ट पावर को लेके डिवाइड करा दिया है x-1 से, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट था उसको एज इट इज़ रहने दिया. अब इन दोनों को जब डिवाइड कराया है, इन दोनों को डिवाइड कराने के लिए सिंपल क्या किया, जो टर्म थी मेरे पास न्यूमरेटर में, इनसाइड द डिवीजन साइन रखी, जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो डिवाइज़र बन गई. सबसे पहली टर्म मेरे पास क्या है, x-1 मेरे पास सबसे पहले डिवाइज़र है, और मुझे चाहिए 3x की पावर 4. तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 3x क्यूब से. तो ये क्या बन जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब. ऐसे ही बना. चलें जी देखिए, ये बन गया. साइन चेंज कराए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गई, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई. माइनस प्लस माइनस, तो 3 माइनस 2 गिव्स यू व्हाट, x क्यूब, यानी कि 1 देता है तो x क्यूब एज इट इज़ आ गया. माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज़. अब आप चेक करो, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, x क्यूब रिक्वायर्ड है. ठीक है, और मेरा जो डिवाइज़र है वो एक है x-1, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, x स्क्वायर से. तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर. अब आप इस वाले पॉइंट पे देखें कि आपके पास x स्क्वायर की टर्म नहीं है. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज़ x क्यूब एज इट इज़ लिखा, x क्यूब के बिल्कुल नीचे, और माइनस x स्क्वायर थोड़ा सा साइड पर लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास कोई भी टर्म नहीं थी x स्क्वायर की, इस वजह से साइन चेंज कराया. ये पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मेरे पास पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब x स्क्वायर सबसे पहले आ गया, माइनस 3x प्लस 2. अगेन द सेम थिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, वी ऑलवेज राइट द पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल. चलें जी, डिवाइज़र मेरे पास क्या है, x-1. मुझे फर्स्ट टर्म क्या रिक्वायर्ड है, x स्क्वायर रिक्वायर्ड है. मैंने सिंपली इसको क्या करा, x से मल्टीप्लाई करा दिया. ये हो गया x स्क्वायर माइनस x. चलिए ये देख लें, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर के जब आपने साइन चेंज कराया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गई, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई. माइनस प्लस क्या हो गई, माइनस. तो 3 माइनस 1 गिव्स यू 2, और बड़े नंबर का साइन आ गया नेगेटिव, प्लस 2 एज इट इज़. अब मुझे फ़र्स्ट पे क्या चाहिए है, मुझे फ़र्स्ट पे चाहिए है माइनस 2x. डिवाइज़र मेरे पास है x-1, इसको सिंपली माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2. यहाँ पे मेंशन किया, साइन चेंज करवाया, कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी 0. अब आप देखें, आपके पास ये जो आंसर आया है, यानी कि जिसके थ्रू पूरा सॉल्व हुआ है, ये आपने किसकी प्लेस पे लिखना है, ये आपने लिखना है इस वाली टर्म की प्लेस पे. आपने क्या करा, ये चीज़ मेंशन कर दी, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2. ठीक है, और जो पहली वाली टर्म थी, यानी कि पहली वाली ब्रैकेट जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था, वो एज इट इज़ कॉपी हो गया, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन एवर वी हैव मल्टीप्लिकेशन इन द न्यूमरेटर, तो हमें इंडिविजुअली डिवाइड करने की नीड नहीं होती है. इज़ दिस थिंग क्लियर? आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग.
if you have any query, you may contact your teacher and ask for your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.